So now start the class. Now roll call, please. Roll 1, Present, sir. 2, Present, sir. 3, Present, sir. 4. Roll 4, 5, Present, sir. 6, Present, sir. 7. Roll 7, 8, Present, sir. 9, Present, sir. 10. Roll 10, 11, 12. Roll 12, 13, Present, sir. 14, Present, sir. 16. Roll 15, Present, sir. 16. Roll 16, 17, 17 present, sir. 18, Present, sir. 19. Roll 19, 20, Present, sir. 21, Present, sir. 22, Present, sir. 23, Present, sir. 24, Present, sir. 25. Roll 25, Present, sir. सर 16 प्रेजेंट चैट बॉक्स में chat box में Present, लिखा sir. था। Roll- 25 present, सर sir. 16 अच्छा, ठीक है, 16 बना दिया। 25, 26, Present, sir. 27, प्रेजेंट सर 28, Present, sir. 29, Present, sir. 30, Present, sir. 31, Present, sir. 32, प्रेजेंट सर 32 33, प्रेजेंट सर 34, Present, sir. 35, Present, sir. 36, Present, sir. 37, प्रेजेंट सर 38. Roll 38. नहीं, 39, 39, Present, sir. Present. okay. 40, Present, sir. 41, Present, sir. 42, Present, sir. 43. Roll 43, 44, Present, sir. 45, प्रेजेंट सर 46, 46, 47, 48, Present, sir. 49, Present, sir. 50. Roll 50. नहीं, 51, Present, sir. 52, 53, Present, sir. 54, Present, sir. 55, Present, sir. 56, Present, sir. 57, Present, sir. 58, Present, sir. 59, Present, sir. 60, Present, sir. 61. प्रेजेंट सर नीतीश कुमार हाँ, ठीक है, 61 हो गया, बोल दिया तुम। 62,
62, 63, 63 भी नहीं, 64, 65, 66, 67, Yes, sir. 68, Present, sir. 69, 69 present, sir. 70, Present, sir. 71, Present, sir. 72, Present, sir. 73, 73, 74, 74, 75, Present, sir. 76, 76, 77, Present, sir. Present, sir. 78, 79, 80, Present, sir. 80. 81, Present, sir. 82, Yes, sir. 83, are all 83? 84, 84, 85, 84 भी नहीं है, 85 भी नहीं, 86, Present, sir. 87, Present, sir. 88, are all 88? 89, Yes, sir. 90, Yes, sir. 91, Present, sir. 92, Present, sir. 93, Present, sir. 94, Yes, sir. 95, Present, sir. 96, 96, 97, Present, sir. छोड़ चुप. Sir, 97 भी, sir. 97, अच्छा Yes, sir. 97 है, 97. जी, sir. बोला नहीं तुम. सर अभी 96 और 97 साथ में ही बोले, सर. साथ में क्या बोलेगा तो उसमें तो अब 96 नहीं बोला तो 97 बोलना ही होगा ना. 98, 99, 98 नहीं है, 99 भी नहीं. 100, Yes, sir. 101, 102, 102 present, sir. 103, Present, sir. 104, Yes, sir. 105, Present, sir. 106, 106, 107, Present, sir. 108, Present, sir. 109, 109, 110, 111, Yes, sir. 112, Present, sir. 113, Present, sir. 114, Present, sir. 115, 115 नहीं है, 116, Present, sir. 117, 117 भी नहीं है, 118, Present, sir. 119, Present, sir. 120, Present, sir. 121, 121,
122. Present, sir. Anybody left? Sir, roll Sir, 66 73. present, sir. Sir, roll 7 or 65. Are all 7 ठीक है और 66 65 sir. 65 65. ठीक है 65 हो गया 7 हो गया और बोलो 73, sir. 25, sir. 85 and 98. 93 sir. So 98. 98 ठीक 121 and 85 sir. 25, sir. 81 121. 65 Yes 65 तो बना दिया अभी 121 66 भी sir. 121 121 Yes sir. तुम तो Sir, 109. 121 तो बोली थी तो फिर चलो 25, Sir, sir. 109. 709 109. 109 Yes, sir. सर 95 तक हुआ था मेरे साइड माइक ऑफ था 95 हो गई Sir, 73. हाँ 85 sir present. 85 प्रेजेंट इस समय प्रेजेंट नहीं था Sir, प्रेजेंट हो 73. गया 73 पहले से बना हुआ है 73 Sir, roll चलो। 66. हाँ Sir, 21. 66 sir. 21 तो पहले से बना हुआ है ये तो तुमने Sir, बोला 109. 109 बना दिया 66 sir. 66 हाँ चलो नहीं बना हुआ था हाँ 25, sir. 25 तो बना हुआ पहले से जी पहले से बना हुआ है Sir, हाँ 16. देखो हाँ Sir, 16 16 तो अभी बोली थी तुम अभी तो 135 16 बोली थी हाँ हेलो देखो न्यू चैप्टर स्टार्ट टुडे नहीं आई एम स्टार्टिंग न्यू चैप्टर दैट इज द बेल्ट ड्राइव बेल्ट चेन एंड रोप ड्राइव आई हैव ऑलरेडी सेंड यू द मटेरियल टू योर नहीं व्हाट्सएप तो देखो अब उसमें जितने बेल्ट ड्राइव के बारे में बेल्ट चेन और रोप ये ड्राइव जो है उसका जो है मटेरियल जो है भेज दिए हैं अभी मेन उसमें क्या है यूज ज्यादा बेल्ट ड्राइव का ही होता है चेन का भी होता है लेकिन रोप का भी होता है लेकिन मेनली हम लोग यूज उसका बेल्ट ड्राइव का ही करते हैं मैं पावर ट्रांसमिशन थ्रू बेल्ट रोप एंड चेन ड्राइव नहीं so power transmission devices are very commonly used to transmit power from one shaft to another shaft नहीं अगर एक shaft से दूसरे shaft के बीच में ट्रांसफर करना है पावर को तो हम लोग बेल्ट के करते हैं द्वारा चेन के करते हैं रोप करते हैं गियर करते हैं नहीं so belt chain and gears are used for this purpose when the distance between the shaft is large belt or rope are used and the intermediate distance chain can be used but for belt drive distance can be maximum but this should not be more than 10 meters for good result gear drive is used for short distance gear drive is used for short distances नहीं सो तुम लोग क्या चेन बेल्ट रोप ड्राइव देखा है कहीं हेलो सो गया नहीं सर देखे हैं सर देखे हैं कन्वेयर बेल्ट यहाँ पर देखा सर, बेल्ट साइकिल में भी चेन होता है सर कन्वेयर चेन बेल्ट साइकिल में भी चेन होता है मोटरसाइकिल में भी चेन होता है नहीं तो देखो पावर कहाँ देते हो तुम साइकिल में पिछले में
नहीं, जो रियर व्हील होता है उसमें देते हो, फ्रंट व्हील में पावर नहीं देते हो। यस सर। तो रियर व्हील कैसे घूमता है, कैसे चलाते हो? तो उसमें तुम जो है पैडल के द्वारा चेन कनेक्टेड रहता है व्हील से, नहीं व्हील के हब से, तो वहां चेन ड्राइव यूज होता है। बेल्ट ड्राइव का कहाँ यूज होता है? सर वो आटा चक्की वाला मशीन में। उसमें आपका क्या करते हैं, जो आपका मशीन आटा चक्की का मशीन है उसको कनेक्ट करते हैं मोटर से, तो मोटर जब स्टार्ट होगा मूव करेगा तो वो भी मूव करेगा। अच्छा ये बताओ, वहां पर अगर हम लोग बेल्ट ड्राइव के बदला में अगर गियर का यूज करें तो क्या होगा? बेल्ट ड्राइव देखा ना, गियर का यूज देखा है? यस सर। कहाँ देखा गियर का यूज? घड़ी में, इंजन्स में। घड़ी में रहता है, इंजन्स में रहता है नहीं। तुम्हारा फोर व्हीलर जो है उसमें तुम्हारा क्या रहता है? फोर व्हीलर में जनरली पावर एक्सेल में यूज होता है। उसमें क्या रहता है? गियर लगा रहता है। गियर ड्राइव। नहीं, गियर ड्राइव रहता है। और ये तो तुम्हारा हो गया बेल्ट ड्राइव, हो गया चेन ड्राइव। रोप ड्राइव का बताओ। लॉन्ग डिस्टेंस कुआं से पानी निकालने में। हाँ, कुआं से पानी निकालने में तो ठीक है, और बताओ। तो जहाँ जहाँ पुली का यूज होता है उसको रोप ड्राइव कह सकते हैं। हाँ, जहाँ जहाँ पुल्ली का यूज होता है, जैसे तुम्हारा क्रेन हुआ, नहीं क्रेन देखे हो ना, कोई चीज को उठाता है तो क्रेन में क्या रहता है? वही रोप लगा रहता है, उसी को बोलते हैं रोप। क्रेन में जो वायर जो रहता है, नहीं वायर का रोप टाइप बना हुआ रहता है, तो वही हम लोग रोप बोलते हैं उसी को। नहीं, या तुम जहाँ पर रेलवे क्रॉसिंग रहता है तो क्रॉसिंग को क्या करते हैं, उसको बंद करते हैं और ओपन करते हैं, तो उसमें भी वायर लगा रहता है। तो ये ये हुआ यूज हुआ बेल्ट ड्राइव, चेन ड्राइव एंड रोप ड्राइव। सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी। आवाज क्यों नहीं जा रही है? आवाज तो, माइक तो खुला ओपन है। हाँ सर एग्जिट हो गए थे। अरे अभी तो फिर जुट गया ना, अब आ रही है सर आवाज। आ रही है ना। तो देखो बेल्ट ड्राइव, बेल्ट में देखो बेल्ट कहाँ यूज, तो इन अभी हम भेजे मटेरियल उसमें देखो सारा चीज। इन केस ऑफ बेल्ट, फ्रिक्शन बिटवीन द बेल्ट एंड पुली यूज टू ट्रांसमिट पावर। In practice, there is always some amount of slip between belt and pulley. Therefore, exact value ratio cannot be obtained. That is why belt drive is not a positive drive. Therefore, the belt drive is used where exact velocity ratio is not required.
The following types of belt drive, belt shown in figure 3.1 are most. So belt drive क्या होगा कि दो सेट के बीच में अगर डिस्टेंस ज्यादा है, मोर है, नहीं, तो वहां हम लोग क्या करेंगे, बेल्ट ड्राइव लेंगे। इंटरमीडिएट में चेन ड्राइव करेंगे। डिस्टेंस कम होगा तो हम लोग क्या करेंगे, गियर यूज करते हैं। नहीं, अगर उतना बड़ा डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो वहां हम लोग गियर यूज करेंगे तो कितना बड़ा गियर हो जाएगा, नहीं, वो तो शाफ्ट ही तुम्हारा ब्रेक हो जाएगा। तो छोटे स्मॉल डिस्टेंस रहेगा तब गियर करेंगे। इंटरमीडिएट डिस्टेंस के लिए वो चेन करेंगे। लेकिन बेल्ट भी ड्राइव क्या है कि 10 मीटर तक करेंगे। 10 मीटर से अगर ज्यादा होगा, मोर डिस्टेंस होगा, तो बेल्ट तो यूज करेंगे लेकिन कंपाउंडिंग करेंगे बेल्ट को, ठीक है ना, 2-3 शाफ्ट लगाना। तो और बेल्ट ड्राइव में क्या होता है, बेल्ट स्लिप भी होता है। तो बेल्ट स्लिप जब होगा, और बेल्ट और क्या होता है कि मूव कैसे करता है बेल्ट, यानी जो आपका जो पुली है उसके बीच में फ्रिक्शन के चलते मूव होता है। तो धीरे धीरे माने क्या, वर्क करते करते फ्रिक्शन क्या कम हो जाता है, तो उसमें स्लिपेज ज्यादा हो जाएगी। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बेल्ट ड्राइव है। एक देखो फ्लैट बेल्ट होता है, ए में देखो फिगर 3.1, ए में फ्लैट बेल्ट एंड पुली। बी में क्या है, बी बेल्ट एंड पुली। और तीसरा में है सर्कुलर बेल्ट और रॉप पुली। यही जो सर्कुलर जो बोले थे, नहीं, तो उसको सर्कुलर बेल्ट भी बोलते हैं, रॉप पुली भी बोलते हैं। तो ये देखो फर्स्ट क्या है, ये द फ्लैट बेल्ट, नहीं, तो द फ्लैट बेल्ट इज रेक्टेंगुलर इन क्रॉस सेक्शन एज शोन फिगर 3.1 ए। उसको फ्लैट बेल्ट को देखोगे तो उसका सेक्शन क्या होता है, क्रॉस सेक्शन होता है। The pulley of this belt is slightly crowned to prevent slip of the belt to one side. It utilizes the friction between the belt surface of the belt and pulley. So it utilizes the friction between the flat surface of the belt and pulley. नहीं, सो बेल्ट किस में रहता है, बेल्ट ड्राइव में बेल्ट माउंटेड किस पर रहता है, पुल्ली पर। और पुल्ली को देखोगे, नहीं, तो पुल्ली को जो है वो रिम के द्वारा वो शाफ्ट पर जो है वो फिक्स रहता है। तो जो पुल्ली होता है उसका शेप क्या होता है, क्राउन रहता है, नहीं, बीच में थोड़ा शेप, क्राउन मतलब बीच में पुल्ली का जो है थोड़ा उठा हुआ रहता है, इसलिए कि स्लिपेज कम हो। नहीं, अभी बेल्ट इज ट्रेपेजॉइडल इन सेक्शन एज शोन इन फिगर 3.1b. It utilizes the force of friction between the inclined sides of the belt and pulley. They are preferred when the distance is comparatively shorter. Now, several V belts can also be used together if power is transmitted is more. If power transmitted. So क्या है कि V बेल्ट में क्या होता है, तो V टाइप का ही बेल्ट होता है, और वो जो पुल्ली में, जिस पुल्ली में माउंटेड होगा, वो पुल्ली में भी उसी टाइप का V टाइप क्या होता है, ग्रूव बना रहता है। तो वो ग्रूव में क्या है, फंसा हुआ रहता है। तो इसलिए क्या है कि ये इसमें जो है स्लिपेज का चांसेस नहीं था। V बेल्ट स्लिप नहीं करता है बेल्ट जो है पुल्ली से। लेकिन इसमें क्या है, डिमेरिट क्या है कि पहला क्या है कि इसमें फ्रिक्शन बहुत ज्यादा, साइड से भी फ्रिक्शन होता है, तो इसमें लॉसेस ज्यादा होगा। दूसरी बात क्या है, इसका डिजाइन ऐसा होता है कि उसी जिस डिजाइन का बेल्ट होगा उसी डिजाइन का क्या होना चाहिए, पुल्ली का जो रिम है उसमें ग्रूव होना चाहिए। तो वो जो है डिजाइन जो है वो करना थोड़ा कॉस्टली है। सो ये होता है V बेल्ट ड्राइव इज मोर कॉस्टली देन फ्लैट बेल्ट ड्राइव। तो V ड्राइव को हम लोग यूज कम करते हैं, लेकिन क्या होता है कि इसमें मेन है कि स्लिपेज नहीं होता है, नहीं, बेल्ट पुल्ली को छोड़ता नहीं है। तो इसलिए इसका हम लोग जहाँ बहुत जरूरी है, नहीं, वहाँ हम लोग V बेल्ट का ही करेंगे। लेकिन V बेल्ट कॉस्टली होता है फ्लैट बेल्ट। The circular belt or rope is circular in section as shown in figure 8.1c. Several ropes can also be used together to transmit more power. A belt drive
आर फॉलोइंग टाइप्स। अब ओपन बेल्ट ड्राइव होता है, क्रॉस बेल्ट। अब नहीं, अब बेल्ट ड्राइव में भी क्या है, तो बेल्ट ड्राइव में भी क्या होता है कि ओपन बेल्ट ड्राइव होता है, क्रॉस बेल्ट ड्राइव होता है। देखे होंगे आप कि जो बेल्ट होता है कहीं कहीं दोनों जो है ओपन मतलब क्या है, ओपन बेल्ट ड्राइव और क्रॉस नहीं, तो कहीं कहीं क्या होता है, क्रॉस रहेगा बेल्ट का, कहीं दोनों पैरेलल रहेगा। तो ओपन बेल्ट ड्राइव में क्या होता है कि ओपन बेल्ट ड्राइव इज यूज्ड व्हेन सेंस ऑफ रोटेशन ऑफ बोथ द पुलीज। नहीं, जब बोथ ड्राइवर नहीं और ड्रिवन बोथ द पुली इज इन सेम रोटेशन, तब उस केस में ओपन बेल्ट ड्राइव करेंगे। सो इट इज डिजायरेबल टू कीप the tight side of the belt on the lower side and the slack side at the upper side। नहीं, सो ओपन बेल्ट ड्राइव में क्या होता है कि टाइट साइड क्या रहेगा, लोअर साइड में रहेगा, और स्लैक साइड क्या रहेगा, अपर साइड में रहेगा। Now, to increase the angle of contact on the pulley, this type of drive is shown in figure। हम देखिए 3.2 में अभी जो भेजे हैं उस फिगर 3.2 में देखिए, ये ओपन बेल्ट ड्राइव है। नहीं, इसमें जो नीचे रहेगा, नीचे का जो पोर्ट बेल्ट रहेगा वो टाइट साइड रहेगा, ऊपर स्लैक साइड रहेगा। थिकनेस जो है दोनों के बीच का, नहीं, जो उसको हम लोग थिकनेस ऑफ द बेल्ट लेंगे। और न्यूट्रल पॉइंट जो है, जो दोनों बेल्ट के बीच में जो होगा पोर्शन, उसको न्यूट्रल पॉइंट बोलेंगे, न्यूट्रल सेक्शन बोलेंगे। इफेक्टिव रेडियस नहीं, पुल्ली के सेंटर से लेकर के जो न्यूट्रल सेक्शन है उसका जो डिस्टेंस होगा, दैट इज द इफेक्टिव रेडियस। नाउ क्रॉस बेल्ट ड्राइव। So in case of cross belt drive, the pulleys rotate in the opposite direction। ओपन में सेम डायरेक्शन पुल्ली रोटेट करेगा, लेकिन क्रॉस में क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में दोनों पुल्ली रोटेट करेगा। एक क्लॉकवाइज होगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा। द एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑफ बेल्ट ऑन बोथ द पुल्ली इज इक्वल। दिस ड्राइव इज शोन इन फिगर इतना, एज शोन इन फिगर। द बेल्ट has a bend in two different planes. As a result of this, belt wears very fast, and therefore this type of drive is not preferred for power transmission। So this can be used for transmission of speed at low power। नहीं, अब देखिए क्या है कि इसमें क्या है, ऊपर का जो पोर्शन होगा बेल्ट का वो टाइट साइड रहेगा क्योंकि ऊपर से खींचता है, और नीचे पुश करेगा। और इसमें क्या है कि एंगल ऑफ कांटेक्ट है मीन बोथ द पुल्ली इज मोर देन 180 डिग्री। नहीं, 180 डिग्री से नहीं, एंगल ऑफ कांटेक्ट मोर है, इसलिए क्या है इसमें लेफ्टिंग प्रॉपर्टीज कम होगा। सो क्रॉस बेल्ट में लेफ्टिंग प्रॉपर्टीज कम होता है कंपेयर टू ओपन बेल्ट ड्राइव। सिंस पावर ट्रांसमिशन बेल्ट ड्राइव इज ड्यू टू फ्रिक्शन, बेल्ट ड्राइव इज सब्जेक्टेड टू स्लिप एंड क्रीप। अब देखिए क्या है, वेलोसिटी रेशियो देखिए। नहीं, सो वेलोसिटी रेशियो फॉर ओपन बेल्ट ड्राइव, so let D1 and D2 be the diameters of the driving and driven pulley। So let D1 and D2 diameter of the driving and driven pulley respectively
N1 and N2 corresponding speed of driving and driven pulley respectively. The velocity of the belt passing over the driver V1 pi D1 N1 by 60, नहीं पाई डी एन बाय 60 करते हैं भी निकलता है। उसी तरह अगर क्या है कि ड्राइविंग का क्या है D1 है और N1 है, आरपीएम क्या है उसका, ड्राइविंग का N1 है और उसका डायमीटर D1 है, तो वेलोसिटी क्या होगा पाई D1 N1 by 60। इफ देयर इज नो स्लिप, अगर स्लिप नहीं होगा तो B1 इज इक्वल टू B2 इक्वल टू पाई D2 N2 60। सो इन दिस केस N1 by N2 equal to D2 by D1. So if thickness of the belt T and it is not negligible in compare of diameter, अगर thickness of the belt को हम लोग कंसीडर करते हैं तो उस केस में N1 by N2 हो जाएगा D2 by D1 और प्लस T कर देंगे दोनों। If there is total percentage slip S in the belt drive which can be taken into account as follows. So इसमें क्या है कि इसमें स्लीप को कंसीडर नहीं किया, नहीं, अगर स्लीप को भी कंसीडर करेंगे तो V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा B1 इंटू 1 माइनस S बाय 100, नहीं, सो V2 इक्वल टू पाई D2 N2 by 60 इक्वल टू V1 पाई D1, सो 1 माइनस S बाय 100। और N1 by N2 equal to D2 by D2 plus T divided by D1 plus T into 1 by 1 minus S by 100. So और D2 है खुला हुआ, so N1 by N2, N2 by N1, D1 plus T divided by D2 plus T into 1 minus S by 100. S क्या है परसेंटेज ऑफ स्लिप है, सो क्या है N2 by N1 माने रोटेशनल स्पीड ऑफ ड्रिवन शाफ्ट डिवाइड बाय रोटेशनल स्पीड ऑफ ड्राइविंग शाफ्ट, नहीं। So the belt moves from the tight side to the slack side and vice versa. So there is some loss of power because the length of the belt continuously extend to tight side and contract on loose side. Thus there is a relative motion between the belt and pulley. Due to body slip, this is known as creep. अब टाइप्स ऑफ द पुल्ली देखिए, टाइप्स ऑफ द पुल्ली में क्या है आपका ओपन बेल्ट ड्राइव है, क्रॉस बेल्ट नहीं, क्रॉस बेल्ट ड्राइव है, ठीक है ना, बेल्ट ड्राइव विथ आइडलर, आइडलर और लॉक की पुल्ली, चौक की पुल्ली, फास्ट एंड लूज पुल्ली ड्राइव, नहीं, इंटरमीडिएट पुल्ली। तो मेन है आपका जो टाइप्स ऑफ में, एक तो ओपन हो गया, दूसरा क्रॉस हो गया, तीसरा क्या है बेल्ट ड्राइव विथ आइडलर पुल्ली रहता है, और फोर्थ है कंपाउंडिंग बेल्ट इंटरमीडिएट पुल्ली, नहीं। तो दिस टाइप ऑफ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नहीं ड्राइव्स। नाउ लॉ ऑफ बेल्टिंग क्या है, the law of belting states that the center line of the belt as it approaches the pulley must lie in a plane perpendicular to the axis of the pulley or in the plane of the pulley. Otherwise, the belt will run out the pulley. So, length of the belt. लेंथ ऑफ द बेल्ट में क्या होगा, ओपन बेल्ट है और क्रॉस बेल्ट,
तो ओपन बेल्ट और क्रॉस बेल्ट का हम लोग मालूम करेंगे कि जब ओपन बेल्ट है और क्रॉस बेल्ट है तो उस केस में लेंथ ऑफ द बेल्ट क्या होगा ओपन के केस। तो अगर ओपन के केस में मान लिए कि इसमें दिया हुआ है द पुली रोटेट इन द सेम डायरेक्शन एस ऑन ए बी। मान लीजिए कि R1 एंड R2 है, रेडियस ऑफ द बिगर एंड स्मॉलर पुली है। तो ओपन बेल्ट में क्या रहेगा कि एक बिगर रहेगा पुली, एक स्मॉलर पुली रहेगा। तो रेडियस मान लीजिए कि जो है बिगर का R1 है और स्मॉलर का R2। सेंटर डिस्टेंस हम लोग x से लिए, टोटल लेंथ ऑफ द बेल्ट हम लोग L मान लीजिए, कैपिटल L मान लीजिए नहीं। तो फ्रॉम B ड्रॉ ए लाइन BN। अब B से क्या कीजिए, फिगर में BN एक लाइन ड्रॉ कीजिए पैरेलल टू DC। फिगर में देखिए तब पता चलेगा। फ्रॉम द ज्योमेट्री ऑफ द फिगर BN इज परपेंडिकुलर टू AD, लेट लेंथ ABN अल्फा। नहीं, वो फिगर में देखिए तो पता चले। तो L क्या होगा, टोटल लेंथ ऑफ द बेल्ट हम लोग निकाल रहे हैं। आर्क ED प्लस आर्क EF प्लस FG प्लस DC प्लस आर्क GH प्लस आर्क CH। बट आर्क EF बराबर क्या होता है, आर्क ED। आर्क GH इक्वल टू आर्क HC और FG इक्वल टू DC। So the total length can be written as L equal to 2 arc EF plus arc GH plus FG. So from figure we know that arc EF equal to R1 into pi by 2 plus alpha and arc GH equal to R2 pi by 2 minus alpha. नहीं, so from triangle ABN, AD minus DND divided by AB equal to sin alpha. So sin alpha equal to R1 minus R2 into X. नहीं, तो क्या होगा कि जो दो पुल्ली है, दो पुल्ली में क्या होगा, एक पुल्ली पर 180 डिग्री से एंगल ऑफ लैप जो है वो ज्यादा होगा अल्फा, और एक में उसी जो स्मॉलर पुल्ली होगा, देखिए उसमें जो बिगर पुली होगा उसमें एंगल ऑफ लैप ज्यादा होगा, जो स्मॉलर पुली होगा उसमें एंगल ऑफ लैप कम। नहीं, तो अल्फा अगर मान लीजिए कि 180 डिग्री से अल्फा एंगल ज्यादा, तो क्या है कि इसमें अल्फा ज्यादा होगा, उसमें अल्फा कम होगा। तो उस तरह से हम लोग टोटल एंगल ऑफ लैप निकाल करके उसको लेंथ निकालते। सो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2 बाई एक्स क्या है, सेंटर डिस्टेंस। तो इस तरह से FG इक्वल टू DC इक्वल टू BN इक्वल टू मालूम हो जाएगा। सो दिस इज FG इक्वल टू X माइनस हाफ R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर बाय एक्स। सो पुट कीजिए, मेकिंग यूज ऑफ इक्वेशन सेकेंड एंड फोर्थ, द इक्वेशन कैन बी रिटन एज, सो L का L टोटल लेंथ जो है वैल्यू पुट कीजिए, और टोटल लेंथ इक्वल टू ओपन बेल्ट ब्रैकेट में L इक्वल टू पाई इंटू R1 प्लस R2 प्लस 2x प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय। So the angle of contact theta will be taken on the similar pulley. In this case, its value is theta equal to 180 degree minus 12. So now क्रॉस बेल्ट ड्राइव के केस में नहीं, सेम क्रॉस बेल्ट ड्राइव के केस में क्या है, अगर लेंथ बेल्ट का निकालना है तो सेम उसी तरह L इक्वल टू क्या होगा, टोटल लेंथ ऑफ द बेल्ट क्या होगा,
L equal to arc AEH plus arc HD plus DC plus FC plus arc FG plus arc GC. नहीं, अब total this is equal to 2 arc EH DC plus arc FG. So arc EH equal to R1 into pi by 2 plus alpha, arc FG equal to R2 pi by 2 plus alpha. So वैल्यू इसका पुट कर दीजिए. तो वैल्यू पुट करने से टोटल लेंथ ऑफ द बेल्ट आ जाएगा L इक्वल टू पाई इंटू R1 प्लस R2 प्लस 2x प्लस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर बाई x. नहीं, in this case angle of contact will theta equal to 180 degree plus 2y. नहीं, so कंपेयर कीजिए. नहीं, ओपन बेल्ट ड्राइव के केस में एंड क्रॉस बेल्ट ड्राइव के केस अगर क्या है कि शेफ्ट का डिस्टेंस अगर सेम हो तो बेल्ट का लेंथ किस में ज्यादा होगा, ओपन में होगा कि क्रॉस में होगा. If the distance between both the shaft, नहीं, in open case, open belt drive and cross belt drive में सेम डिस्टेंस में shaft हो तो लेंथ किसका ज्यादा होगा, ओपन की क्रॉस का? क्रॉस का. क्रॉस में ज्यादा होगा, क्योंकि देखिए उसका फॉर्मूला जो निकला है क्रॉस में L इक्वल टू पाई R1 प्लस R2 प्लस 2x प्लस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर पर. अब उसमें क्या है, L इक्वल टू पाई R1 प्लस R2 प्लस 2x प्लस R1 माइनस R2 होल. तो यहाँ R1 माइनस R2 का, यहाँ R1 प्लस R2. तो लेंथ क्रॉस बेल्ट में मोर लगेगा कंपेयर टू ओपन बेल्ट. तो इसको आप लोग देख लीजिए, बुक में भी है, भेज भी दिए हैं लेंथ निकालने के लिए, और इसमें हम लोग प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे. प्रॉब्लम दे देंगे, प्रॉब्लम निकालना होगा. नहीं, तो इस तरह का आप लोग फॉर्मूला याद रखिए, और नहीं तो उसका सॉल्यूशन देख लीजिए, जान लीजिए. ठीक है, नेक्स्ट टाइम इसमें लेंथ ऑफ द बेल्ट हो गया. अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, नेक्स्ट जो है पावर ट्रांसमिटेड बाय ए बेल्ट या ड्राइविंग रेशियो ऑफ ड्राइविंग टेंशन. उससे फ्लैट बेल्ट में क्या टेंशन का रेशियो है और वी बेल्ट में क्या टेंशन है, इसको हम लोग देखेंगे. सेंट्रीफ्यूगल टेंशन तो नेक्स्ट टाइम हम लोग, आपका तो कल भी क्लास है ना, तो देखेंगे इसको. ठीक है, यस सर. और बाकी कल करेंगे. देखते रहिए आप लोग, बुक से भी देखिए. ठीक, थैंक यू ओके. थैंक यू सर. सर